نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. بیچ 2 اینڈ ورب ریویژن اسٹوڈینٹس، آپ سب کو خوش آمدید ہے. لیکچر نمبر 37 میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل ماضی کو سوالیہ بنانا. پریویس 2 لیکچر سے آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم اسپیسیفکلی فعل ماضی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ فعل کو زمانے کے اعتبار سے دو طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع. اب جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ میں کس طرح سے ہم ایمفیسس لا سکتے ہیں، تو اسی طرح فعل ماضی اور مضارع میں بھی چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے لیکچر نمبر 35 میں دیکھا کہ کس طرح سے فعل ماضی میں تاکید لائی جا سکتی ہے، کس طرح سے ایمفیسس پیدا کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے لیکچر 36 میں فعل ماضی میں نیگیشن سیکھی، کس طرح سے اس کو منفی بنایا جا سکتا ہے. تو آج ہم فعل ماضی کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ. فعل ماضی کو سوالیہ بنانا. سب سے پہلے دیکھیے استفہام، انٹروگیشنل. استفہام کے لغوی معنی کیا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا. ٹھیک ہے، ادوات استفہام انٹروگیٹو پروناؤنس. ادوات کہتے ہیں ٹولز کو، یعنی ایسے کلمات یا ایسے ٹولز جن کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ انہیں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا، حروف استفہام اور اسماء استفہام. ان کی ڈیٹیل اسٹڈی لیکچر 21 میں آپ نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو دوبارہ سے ریوائز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، لیکن ابھی بھی ہم تھوڑا سا گو تھرو کریں گے ان کو. استفہام یعنی فہم، سمجھنا. استفہام سوال کرنا، کسی سے پوچھنا. تو جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو ایک انفارمیشن ملتی ہے، جواب ملتا ہے، تو وہ جواب آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ پوچھتے ہیں کیا زینب مدرسے گئی تھی، تو جو آپ کو جواب ملتا ہے وہ آپ کے لیے ایک انفارمیشن ہے. کیا والدہ نے کھانا پکایا تھا، یا کیا خالد نے حامد کو مارا تھا. تو سوال جب کیا جاتا ہے تو اس سوال ہماری گفتگو کا حصہ ہے، ہماری کنورسیشن کا پارٹ ہے. جس طرح سے ہم پازیٹیو سینٹینس بولتے ہیں، مثبت جملے بولتے ہیں، اسی طرح نیگیٹو جملے بھی بولتے ہیں، تو سوالیہ جملے بھی ہماری کنورسیشن کا حصہ ہیں اور ان کے ذریعے ہم فہم حاصل کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں. استفہام استفعال کے وزن پر آتا ہے، طلب کرنے کا معنی. استفعال ایک باب ہے، باب استفعال، مزید بھی باب میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باب کے اندر آنے والے جو وربز ہوتے ہیں، جو فعل ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، وہ ان میں طلب کرنے کا مفہوم ہے. تو استفہام بھی کیا ہے؟ فہم طلب کرنا. جملہ فعلیہ میں استفہام پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں. حروف استفہام یعنی اگر ہمیں سوال کیا جائے کہ کیا تم نے قرآن پڑھا، تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. تو جس جملے کا جواب یا جس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جائے اس میں حروف استفہام استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کیا تم نے سبق پڑھا، کیا زینب مدرسے گئی. مینس آپ کو جب کوئی ایسا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں جس کا جواب صرف ہاں یا نہ میں بھی مل جائے تو بات مکمل ہو جائے گی، تو اس کے لیے ہم حروف استفہام کا استعمال کریں گے. اسماء استفہام
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब में वजाहत दी जाती है, उनमें अस्मा इस्तिफाम इस्तेमाल किए जाते हैं। जिन सवालों के जवाब में वजाहत मतलूब हो, मीन्स कि जिन सवालों का जवाब आपको डिटेल चाहिए, जब आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आप उनके लिए अस्मा इस्तिफाम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि क्या आपने किताब पढ़ी या क्या तूने किताब पढ़ी, तो इसका जवाब सिंपली आप हाँ या ना से दे सकती हैं। ठीक है, तो जब मैं सवाल करूंगी तो तब मैं हरूफ इस्तिफाम इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर मुझे डिटेल जवाब चाहिए या मैं आपसे कहती हूँ आपने कौन सी किताब पढ़ी, अब जब मैंने आपसे ये सवाल किया है तो आप उसके लिए मुझे डिटेल जवाब देंगी, और ये सवाल मैं आपसे अस्मा इस्तिफाम के थ्रू पूछूंगी। ठीक है, यानी अब आप मुझे डिटेल जवाब देंगी कि आपने कौन सी किताब पढ़ी, किस राइटर की थी, कौन से सब्जेक्ट की थी, कौन सा चैप्टर पढ़ा, एटसेट्रा। तो ये जुमला फेलिया में इस्तिफाम पैदा करने के दो तरीके बिल्कुल वैसे ही हैं जो जुमला इस्मिया में थे, कोई चेंज नहीं है। हमजा और खाली, ये दो हरूफ इस्तिफाम हैं और इनके कॉमन मीनिंग है क्या, ये इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर अस्मा इस्तिफाम देखिएगा, उनको भी देख देखते हैं, हम इनको देख लेते हैं इस चार्ट में। मा, माजा, क्या, व्हाट, मन, कौन, हु, कैफा, कैसा, हाउ, आईना, कहाँ, वेयर। अब यहाँ पर जो आपके सामने आ रहा है कैफा, ठीक है, अब कैफा किस लिए आता है? कैफा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी चीज की जो है हालत पूछने के लिए, हालत के मुतालिक जब हमें सवाल करना है तो हम कैफा को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो आईना है ये, क्योंकि देखिए इसके आगे लिखा है ज़र्फ मकान, तो जब हमें किसी जगह या मकान के मुतालिक सवाल करना है तो हम आईना को यूज करेंगे। देखिएगा आगे, मता, कब, व्हेन। इसी तरह आगे है अय्याना, कब, व्हेन। अन्ना, कहाँ से या वेयर, फ्रॉम वेयर। ठीक है, तो अब अन्ना का भी वही काम है जो कि हमने आईना का देखा था, कि जब हमें किसी जगह के लिए सवाल करना है तो हम अन्ना के थ्रू करेंगे। ठीक, और फिर मता और अय्याना, इनको देखिएगा कि दोनों क्योंकि ज़र्फ ज़मान है, तो जब भी हमें वक्त सवाल करते वक्त हमें वक्त के बारे में सवाल करना है तो फिर हम मता और अय्याना को यूज करेंगे। अय्युन, अय्युन जो है ये एक मोरब इसम है, ठीक है, इसका एराब चेंज होगा, और बाकी तमाम जो अस्मा इस्तिफाम है ना वो मबनी है। सिर्फ ये अय्यू जो है ना, अय्युन, ये मोरब इसम है। ठीक है, यानी इसका एराब चेंज होता है। अय्युन कौन सा, विच। आगे देख लेते हैं हम, हर्फ जर का अस्मा इस्तिफाम के साथ इस्तेमाल। फीमा, किस चीज में, इला आईना, कहाँ की तरफ, इला मता, कब तक, अनमा, सॉरी अम्मा, किस चीज की निस्बत से, किस बारे में। फिर है मिम्मा, किस चीज से, मिन आईना, कहाँ से, लिमा, क्यों, लिमन, किसकी या किसके लिए। ये सारी डिटेल स्टडी आप लेक्चर 21 में कर चुकी है। पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, तमाम इसम इस्तिफाम जुमले के शुरू में आते हैं, यानी ये सदारत चाहते हैं, ये नकरा होते हैं। तमाम इसम इस्तिफाम मबनी होते हैं सिवाय अय्युन के। अब इसम है ना, तो इसम की वसअत भी होगी, तो ये नकरा होते हैं। फिर तमाम इसम इस्तिफाम जो है ये मबनी होंगे, यानी इनका एराब हमें नजर नहीं आएगा, रफा नसब जर में सेम लिखे जाएंगे।
ऐना, अय्याना, अन्ना, मता, ये 4 इसम इस्तिफ़हाम ज़र्फ़ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसको भी नोट डाउन कीजिएगा, मैं आगे बताती हूँ आपको। फ़िल माज़ी को सवालिया बनाना। फ़िल माज़ी को सवालिया बनाने के लिए वही हरूफ और अस्मा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जुमला इस्मिया में इस्तेमाल हुए थे। सेम वही हरूफ है, और हल, ठीक है? हमज़ा इस्तिफ़हाम और हल, और अस्मा इस्तिफ़हाम भी वही है। कोई एराबी तब्दीली वाक़या नहीं होती, यानी किसी किस्म का कोई ये ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएँगे जब ये फ़िल माज़ी से पहले आएँगे। ये पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, अस्मा इस्तिफ़हाम जुमला फ़ेलिया का हिस्सा बनेंगे, फ़ाइल या मफ़ऊल, ठीक है? क्योंकि इसम है, तो इसम का जुमले में कोई ना कोई स्टेटस होता है, उसे कोई ना कोई मुकाम आपने देना है। फ़तहतल बाबा, आ हमारा जो है हर्फ़ इस्तिफ़हाम है, ठीक है? फ़तहता फ़िल माज़ी, फ़ाताहा रूट लेटर है, और ता ज़बर ता हमें आइडेंटिफ़ाई कर रही है, हमें शो कर रही है कि यहाँ अंता ज़मीर फ़ाइल हिडन है। अल-बाबा हालत नस्ब में है, ये मफ़ऊल है, ठीक है? तो फ़तहता, फ़ातहा खोलना, फ़तहता तूने खोला, अल-बाबा यानी क्या खोला? अल-बाबा दरवाज़ा, ये मफ़ऊल। तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे? क्या तुमने दरवाज़ा खोला? अब क्योंकि यहाँ हर्फ़ इस्तिफ़हाम आ रहा है, तो मैं इसका सिंपल आंसर ला या नाम के साथ दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसको वैसे भी एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं कहूँगी मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ठीक है? तो फिर मैं ला का इस्तेमाल तो नहीं करूँगी फ़िल माज़ी के साथ। तो फिर हम किस तरह से इसके आंसर को कंस्ट्रक्ट करेंगे देखें। मैं कहूँगी ला मा फ़तहतुल बाबा। सवाल तो मुझसे हुआ ना कि क्या तुमने दरवाज़ा खोला? तो अब मैं इसका जवाब दे रही हूँ, ला नहीं, मा फ़तहतुल बाबा, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। ये ला जो है, ये ला इस हर्फ़ इस्तिफ़हाम के जवाब में है, ठीक है? जो हमने ऊपर हमज़ा इस्तिफ़हाम इस्तेमाल किया, और फिर मैंने कहा मा फ़तहतुल बाबा, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब क्योंकि फ़ेल माज़ी था, और फ़ेल माज़ी के साथ मैं ला को इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इसके लिए मैं लेकर आई मा, ठीक है? अब इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? नहीं, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। ये छोटी-छोटी सी पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी क्लास प्रैक्टिस करेंगे हम। आगे देखिएगा। हर्फ का कोई मुकाम या स्टेटस नहीं होता। अब क्योंकि हमज़ा इस्तिफ़हाम हर्फ है, तो इसका इधर जुमले में कोई स्टेटस नहीं होता। प्रैक्टिस फ्रॉम कुरान। कुरान से देखते हैं एग्जाम्पल। फहल वजदतुम, हल हमारा क्या है? हर्फ इस्तिफ़हाम। वजदतुम, ये आ गया फ़ेल माज़ी, वाओ जीम दाल रूट लेटर है हमारे पास, और तुम हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अंतुम की ज़मीर जो है, वो यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल है, ठीक है? तो अंतुम फ़ाइल मुस्ततिर। ट्रांसलेशन क्या? तो क्या पाया तुम सब ने? ठीक है? अकफ़रता बिल्लज़ी ख़लक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़ा। आ हमज़ा इस्तिफ़हाम, हर्फ़ इस्तिफ़हाम है हमारा। कफ़रता फ़ेल माज़ी, ता ज़बर ता इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर अंता ज़मीर फ़ाइल है। क्या तूने कुफ़्र किया? सवाल किया जा रहा है, क्या तूने कुफ़्र किया? मा मनअका, मा इसम इस्तिफ़हाम है। मनअ मीम नून आइन वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अटैच्ड काफ ज़मीर जो है मफ़ऊल है हमारा। किस चीज़ ने तुझे रोका? अब ये जो मा इस्तिफ़हामिया है ना, मा बमाइनिन अय्यु शैइन, ठीक है? किस चीज़, इसलिए यहाँ पे आपको किस चीज़ मिल रहा है।
कैफ़ा फ़अलना बिहिम, कैफ़ा इसम इस्तिफ़हाम है, फ़अलना फ़ाइल नाम रूट लेटर है, नून ज़बर ना इंडिकेट कर रहा है कि ये सीगा नंबर 14 है जमा मुतकल्लिम का। फ़ा हर्फ़ जर, आगे जो ज़मीर हिम है ये मजरूर है वाव की वजह से। तो ये मजरूर ज़मीर जो है ये जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक़ के फ़ेल हो जाएँगे। कैफ़ा इसको क्या स्टेटस देंगे? ये हमारा मफ़ऊल मुक़द्दम हो जाएगा। यानी हमने उनके साथ कैसा किया? आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? फ़िल माज़ी को सवालिया बनाना। आज हमने फ़िल माज़ी में इंटेरोगेशन सीखी है, किस तरह से की जा सकती है। बहुत मुख़्तसर सा लेक्चर है। अल्लाह ताला आप सबके लिए सीखना आसान बनाए और मेरे लिए सिखाना आसान बनाए। अगर मेरी आवाज़ की वज़ह से आपको सुनने और लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए माज़रत है। तबीयत की ख़राबी की वज़ह से लेक्चर डिले हो रहा था, लेकिन क्योंकि कमिटमेंट की है तो आपके साथ लेक्चर शेयर करना है इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।